اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے پارلیمنٹ میں ہوئے حملے کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ بھی نریندر مودی کے دور میں محفوظ نہیں ہے، نہ بارڈر محفوظ، نہ منی پور جیسے شہر محفوظ، نہ پارلیمنٹ محفوظ۔ اب پارلیمنٹ میں جو سیکورٹی میں خامی ہوئی ہے وہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس کو لے کر اپوزیشن لگاتار ہنگامہ کر رہی ہے۔ تو گزشتہ کل بڑی دیر کے بعد ہی صحیح مگر نریندر مودی نے منہ کھولا اور کہا کہ پارلیمنٹ سیکورٹی میں خامی انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور مودی جی نے اپنے انٹرویو میں اس کوتاہی پر افسوس کا اظہار کیا اور تفصیلی تحقیقات کا بھی اعلان کیا۔ وہیں پر مودی جی نے اپوزیشن تمام پارٹیوں سے بحث و مزاحمت سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ پارلیمنٹ کی سیکورٹی میں کوتاہی کے حوالے سے سیاسی بیان بازی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ایوان میں آئیں اور اس واقعے کے بارے میں بیان دیں، مگر وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں سیکورٹی کولیپس پر پہلی بار رد عمل کا اظہار کیا اور اپنے انٹرویو میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس خامی کو انتہائی سنگین معاملہ بتایا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی کو پارلیمنٹ میں آنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، ایسے ہی دبئی جانے کا، امریکہ جانے کا وقت ملتا ہے، منی پور جانے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ مودی جی نہ پریس کے سامنے ان 10 سالوں میں آئے ہیں، نہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے سامنے آتے ہیں۔ اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہاں آؤ اور جواب دو کہ 56 انچ کا سینہ کتنا مجبور ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ناگپور کی سولر ایکسپلوسیو کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ 9 افراد کی بڑی دردناک موت ہوئی ہے۔ مرنے والوں میں 6 عورتیں شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے مرنے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیوز پورٹل سے ملی خبر کے مطابق ناگپور کے بازار گاؤں میں ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ سولر ایکسپلوسیو کمپنی میں ہوا ہے۔ اس حادثے میں 9 لوگوں کی مرنے کی خبر ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ کمپنی کے کاسٹ بوسٹر پلانٹ میں
पैकिंग के दौरान हुआ। पुलिस के मुताबिक अब तक 4 अफराद को जख्मी हालत में बचा लिया गया है। ताहम अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं। यह हादसा नागपुर देही इलाके में पेश आया। नागपुर देही एसपी के मुताबिक मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ नफरतों का माहौल योगी आदित्यनाथ के दौर में बढ़ चुका है और भगवा आतंकवादियों को यह लगता है कि अपने अब्बा की हुकूमत है, अपना कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए बिंदास भगवा आतंकी नंगा नाच खेल रहे हैं। लेकिन यहां पर जो खबर आ रही है वो अजीब है कि नगर निगम के लोगों ने लखनऊ में एक कश्मीरी ताजिर से मारपीट की। नगर निगम के लोगों ने ड्राई फ्रूट छीन लिया, सड़क पर फेंक दिया, ऐसा सुलूक किया कि वीडियो वायरल हो गई। वो कश्मीरी ये कह रहा था कि भाई हम भी हिंदुस्तानी हैं, फिर हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों? ये सवाल कश्मीरी नौजवान का है जो अहले खाना का पेट पालने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ड्राई फ्रूट बेचने आया था। इल्जाम है कि लखनऊ नगर निगम की टीम ने उन नौजवानों के साथ न सिर्फ मार की पीट की बल्कि उनका सामान भी सड़क पर फेंक दिया। अभी इस नाज़िब हरकत के खिलाफ आवाज उठाकर कश्मीरी इंसाफ मांग रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक इतवार को ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी नौजवानों के साथ नगर निगम की टीम ने बदसलूकी की है। इन नौजवानों ने इल्जाम लगाया है कि नगर निगम की टीम ने उनका सामान छीनने की कोशिश की, मुखालिफत करने पर उनके साथ मारपीट की गई और सामान छीनकर सड़क पर फेंक दिया गया। और नौजवानों का कहना है कि आज उनके साथ ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अक्सर उनके या उन जैसे कश्मीरियों के साथ दूसरे लोग इस तरह की हरकत करते रहते हैं। आइए बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर खबीस और मरदूद लीडर साध्वी पराची ने मशवरा देते हुए ये कहा कि मुस्लिम लड़कियों को चाहिए कि वो हिंदुओं से शादी करें अपनी इश्तियाल अंगेजी के लिए और अपने मुंह से गंदगी और गोबर निकालने के लिए। मशहूर बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर साध्वी पराची ने पीलीभीत में फिर मुसलमानों के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेजी की है और मुस्लिम लड़कियों को मशवरा दिया है कि वो हिंदुओं से शादी करें। साध्वी ने कहा कि मुस्लिम समाज में खवातीन को हलाला और 3 तलाक का डर रहता है, इसलिए मशवरा देती हूँ कि हिंदू मजहब में शादी शुरू कर दें। हिंदू मजहब में मुस्लिम लड़कियों का इस्तिकबाल है। उसने कहा कि सनातन धर्म में 7 फेरों के साथ 7 जन्मों का बंधन कराया जाता है। उसने हिंदुओं से मुस्लिम लड़कियों को शादी करने का मशवरा दिया है। पराची ने इल्जाम लगाया कि समाज के लोग जानवरों से भी प्यार नहीं करते हैं, ऐसे लोग हिंदू लड़कियों से कैसे प्यार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से प्यार के नाम पर जिहाद करते हैं, फिर उन्हें शादी की तजवीज़ देते हैं, इसलिए मुस्लिम लड़कियों का हिंदू मजहब में इस्तिकबाल है। खैर, पराची खबीस और मरदूद किस्म की शैतानी जहन की लीडर है, इसलिए हमेशा खबासत और गलाजत अपने मुंह से निकालती रहती है। आयादीन, अभी जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन के जो नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों को सामने रखकर एक बड़ी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आ रही है कि इस वक्त यूँ समझिए कि मुसलमान इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं और हो रहे हैं। पहली बार मरकज समेत केंद्र समेत 15 रियासतों में कोई भी मुसलमान मंत्री, कोई भी मुस्लिम वजीर नहीं है। बीजेपी की हुकूमत वाली मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के वजीर बनने के इम्कानात सिफर है, क्योंकि तीनों रियासतों में एक भी मुस्लिम एमएलए बीजेपी से नहीं जीता। बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार मरकज समेत 15 रियासतों की हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं होगा। इनमें आसाम, गुजरात और तेलंगाना जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल है, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से भी ज्यादा है। मुल्क में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है, जो कि हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। 5 रियासतों में इलेक्शन के नताइज आने के बाद हुकूमत साजी के अमल में मुसलमानों की शिरकत यकीनी दिखाई नहीं दे रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि मुसलमान इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं। पार्लियामेंट पर जिन लोगों ने हमला किया है, उन लोगों को लेकर साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयप्रकाश का बड़ा बयान आया है। जयप्रकाश ने कहा है कि पार्लियामेंट पर हमला करने वाले पेशावर दहशतगर्द
नहीं हैं, बल्कि वो संविधान के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ एहतजाज आंदोलन कर रहे थे। एक्चुअल मोदी जी ने और बीजेपी ने जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई है और जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ा दिया है, नफरतों को बढ़ा दिया है और संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसी को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। पार्लियामेंट पर हमला करने वाले कोई पेशावर दहशतगर्द नहीं है। और एक अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा ये हुआ कि इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। अगर एक भी मुसलमान होता तो उसे मास्टरमाइंड बता दिया जाता और फिर हमारी मीडिया कुत्तों से भी ज्यादा भौंकने का हक अदा कर देती और फिर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता और बड़ी जोर शोर के अंदाज में मीडिया चिल्लाती और मुसलमानों की धर पकड़ शुरू हो जाती और तार हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और तालिबान तक पहुंचा दिए जाते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। जयप्रकाश का बड़ा बयान आया है कि ये जितने भी हमला करने वाले हैं पार्लियामेंट में, ये एक भी पेशावर दहशतगर्द नहीं है, बल्कि वो एहतजाज कर रहे थे केंद्र सरकार की बदमाशियों के खिलाफ। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि राम मंदिर तामीर हो रहा है और खबर ये भी है कि 22 जनवरी को बाकायदा उसका ओपनिंग या उद्घाटन होने वाला है। ऐसी खबरें 22 जनवरी है या 22 दिसंबर है, 22 जनवरी शायद बताया जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर देवबंद में पहुंचे शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर कोई बीजेपी तामीर नहीं कर रही है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं बना रहा है। राम मंदिर तो अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तामीर हो रहा है। बीजेपी का इसमें कोई किरदार नहीं। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी सेहरा पहनने में बड़े माहिर है। बीजेपी राम के नाम के सहारे अपनी रोटियां सेकती है, अपनी सियासत, अपनी राजनीति चलाती है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अभी सत्ता से, इक़्तिदार से हटाने के लिए इंडिया मुत्तहदा महाज तश्कील दिया गया है। खैर, देवबंद में शिवपाल यादव का जो बड़ा बयान आया है कि राम मंदिर तो अदालत के हुक्म पर बन रहा है, इसमें मोदी या बीजेपी का कोई कमाल नहीं। अगर अंधभक्त और गोबर भक्त इस बात को समझ जाएं तो फिर वो बीजेपी को सहारे कि बीजेपी को किनारे लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी जी बड़े होशियार है। नाना के माल पे दादा का फातिहा, दूसरे के काम पे अपना खुद का सेहरा कैसा पहनना, मोदी जी इसमें माहिर है। तो अब ऐसे ही राम मंदिर की तामीर के नाम पर भी 2024 का इलेक्शन मोदी जी और बीजेपी जीतना चाहती है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शिकस्त मिली है। अब शिकस्त मिलने के बाद बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चेहरा बदला है। जी हां, अब कमलनाथ को हटाकर पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने साबिक वजीर आला कमलनाथ को हटाकर अपना चेहरा बदलने की कोशिश करते हुए अब तक रियासत में पार्टी की कमान संभालने वाले साबिक वजीर आला कमलनाथ को रियासती सदर के ओहदे से हटाते हुए साबिक वजीर जीतू पटवारी को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मालवांचल के इंदौर से आने वाले पार्टी के नौजवान लीडर और साबिक वजीर मिस्टर पटवारी को कांग्रेस सदर और उसी इलाके के जिला के नौजवान लीडर गंदवानी के एमएलए को असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के तौर पर मुकर्रर किया है। आइए दिन रियासत महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी अजीब खबर आ रही। नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि विधान भवन पर एक अनोखा मोर्चा नजर आया। जी हां, किसानों के बेटों का वो मोर्चा था। वैसे तो विधान भवन पे अलग अलग मोर्चे चल रहे हैं। बेरोजगार नौकरियों का मोर्चे के लिए मोर्चे दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स सर्विस में रहना चाहते हैं, जो सर्विस में है वो तनख्वाह में इजाफा चाहते हैं। किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत चाहते हैं। सब अलग अलग मोर्चे शुरू है। वॉइस ऑफ मीडिया का पत्रकारों के हुकूक के लिए मोर्चा वहां पर 3 दिन तक रहा। मैं खुद वहां पर 2 दिन के लिए नागपुर गया था। लेकिन अभी एक
एक अलग टाइप का मोर्चा विधान भवन के सामने नजर आया। वो किसानों के बेटों का मोर्चा था और उनके हाथ में जो तख्तियां थी, प्लेकार्ड थे, उस पर लिखा था कि पैसे के बगैर जी नहीं सकता और शादी के बगैर मर नहीं सकता। क्या करें, किसानों के गैर शादीशुदा बेटों ने विधान भवन पर मोर्चा निकाला। उनके हाथों में जो तख्तियां थी उस पर लिखा हुआ था कि मेरे खेत की कीमत नहीं मिलती, इसलिए मुझे शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती, मुझे खेती बाड़ी के लिए बिजली नहीं मिलती, इलेक्ट्रिक पंप के लिए बिजली नहीं मिलती, बेमौसम बारिशों का कोई बदला नहीं मिलता, लेकिन मेरी ज़रूरी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है, पैसे के बगैर जी नहीं सकता तो शादी के बगैर मर नहीं सकता। इस तरह के मुख्तलिफ नारे उनके हाथों की तख्तियों पर लिखे हुए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने तमाम लोगों को रोड पर ला दिया है। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि धारावी में अपोजिशन पार्टियों ने अडानी ग्रुप के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया, जिसमें मकामी एमएलए वर्षा गायकवाड़ भी मौजूद थी। इस आंदोलन की क़यादत करते हुए उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा TDR घोटाला है। महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर, वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता शनिचर को धारावी में अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया। उद्धव ने धारावी से BKC में वाक़ अडानी के दफ्तर तक अपने हामियों के साथ एक मोर्चा निकाला, जिसमें अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी का विकास महाडा या MMRD से कराओ जैसे नारे बुलंद किए गए। इस मोर्चे में हजारों लोगों ने शिरकत की थी और अपने हाथों में अडानी के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे।